مطلب وہی جس کو آپ نے عالم کورس کے نام سے کہا، تو وہی عالم کورس کو دوسرے اردو میں کتنے سال کا ہوتا ہے عالم کورس؟ یہ عالم کورس 5 سال کا ہوتا ہے. اچھا بچے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد صادق سونور، آپ دیکھ رہے ہیں HDMC نیوز. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ابھی اولڈ ہبلی کی عیدگاہ میدان میں یہاں پر موجود ہے. یہاں پر سنی دعوت اسلامی کا 26واں سالانہ جو جلسہ ہے وہ منعقد کیا گیا تھا، اور اسی جلسے میں کچھ بچے عالم دین اور حافظ قرآن بنے ہیں. تو ہم جانیں گے کہ یہ بچے جو قرآن پڑھ کر کے حافظ بنے ہیں یا عالم دین بنے ہیں، کس طریقے سے یہ اپنے وقت کو دے کر کے کتنے سالوں میں کیسے ان کا علم حاصل کیے ہیں، ہر چیز کو ہم باریکی سے پوچھنے کی ہم کوشش کریں گے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ. آج کا جو اجلاس تھا، جو محفل تھی، یہ کس کے کیا تھی حضرت؟ یہ اصل میں ہماری تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہ سالانہ سنی اجتماع ہے. تو اسی کے اندر ہم لوگ جو ہمارے ادارے میں درس نظامیہ کی تعلیم مکمل کیے. درس نظامی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درس نظامیہ کا مطلب وہی جس کو آپ نے عالم کورس کے نام سے کہا، تو وہی عالم کورس کو دوسرے اردو میں. کتنے سال کا ہوتا ہے عالم کورس؟ یہ عالم کورس 5 سال کا ہوتا. اچھا. بچے الحمدللہ الگ الگ علاقوں سے آئے ہیں. یہ محمد ذیشان ہے، داون گیرہ کے پاس میں سنگر ہلی گاؤں ہے، وہاں کے ہیں. اور یہ مولوی محمد اویس نجمی ہے، یہ بدراوتی سے آئے ہیں. اور یہ عارف خطیب ہے، یہی ہبلی کے رہنے والے ہیں. اور ایک ہمارے ہے اسحاق شاہ نور کے ہیں وہ. الحمدللہ یہ لوگ 5 سال سے ہمارے ادارے میں رہے اور عالم کورس مکمل کیا، جس کی وجہ سے آج انہیں دستار بندی سے نواز سکے ہیں. اچھا، یہ دستار بندی کا مطلب کیا ہوتا ہے سر؟ دستار بندی کا مطلب انسان جب عالم کورس کو مکمل کرتا تو ہم اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، تو اسی کو ہم دستار بندی کے نام سے. اچھا، مطلب سرٹیفکیٹ آپ دینے کے بعد میں دستار بندی ہو جاتی ہے. جی، تو عالم بن جاتے ہیں. تو عالم بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد میں وہ دیگر اداروں میں یا دیگر مساجد میں یا جہاں کہیں بھی دین کی خدمت کی ضرورت پڑ دے، وہاں جا کے پھر دینی فریضے کو انجام دیتے ہیں. آپ ہی ان کو بھیجتے ہیں یا پھر ان کو کیسے؟ پھر وہاں پہلے ہم ان لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں کہ آپ ہمارے انڈر ہی میں رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ماتحتی میں جگہیں ہیں، اگر آپ وہاں پر جا کر کام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کام کر سکتے ہیں، یا وہ خود اپنے گاؤں میں رہ کر ہی وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی کر سکتے ہیں. اولین ترجیح ہماری یہی ہوتی ہے کہ بچہ شروع سے بچپن سے گھر کے باہر ہی رہتا، اب فارغ ہونے کے بعد میں اپنے گھر ہی میں رہے، اپنے علاقے میں رہ کر کام کرے. لیکن علاقے میں پہلے سے لوگ موجود ہیں، پہلے سے کوئی عالم دین حافظ قرآن ہے، وہاں جگہ نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر ہم آس پاس کے علاقوں میں تلاش کرتے ہیں. تلاش کر کے پھر وہاں دین کی خدمت کے لیے ہم بچے کو روانہ. پورا نام کیا ہے؟ میرا نام غلام مصطفیٰ نجمی. آپ یہاں پر کیا ہیں؟ میں جس ادارے سے یہ لوگ فارغ وہاں کا میں پرنسپل ہوں. مدرس ہوں. جی. اچھا سر، پرنسپل ہیں؟ پرنسپل ہوں جی. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ مدرسے کا نام کیا ہے؟ مدرسے کا نام جامعہ قدریہ نوریہ نجم العلوم. کہاں تھا حضرت؟ یہ ادھر ہی ہبلی کے تھوڑی ہی انچڑ ایریا کریا ہے. تو آپ کون سے گاؤں سے؟ میں باگلکوٹ ڈسٹرکٹ کھیرور سے ہوں. اچھا، کرناٹک. پھر وہاں پر کیا کیا وہاں پر پڑھائی ہوتی ہے؟ کہاں پہ؟ وہاں پہ وہی جامعہ میں شعبہ تحفیظ کورس ہے، پھر اس کے بعد میں عالم کورس ہے. پھر جن لوگوں کو قرآن ابھی پڑھنا نہیں آتا ان لوگوں کو قرآن کی بھی تعلیم دیتے ہیں، حافظ قرآن بناتے ہیں، عالم دین. تھوڑا آواز اونچی رکھے ہوئی ہے. ابھی کیا صبح سے تھکے ہیں تو آواز پست ہو گئی ہے ہمارے. نہیں، چل جائے گا. ہمارے مدرسے کے بازو میں انگلش میڈیم اسکول بھی ہے. تو جو اسکول کا نام کیا ہے؟ اسکول کا نام ہیرا انگلش میڈیم اسکول ہے. کہاں تک تعلیم ہوتی ہے وہاں پر؟ وہاں 8 تک کی تعلیم ہے. ابھی اوپر ایک کام چالو بھی، عمارتی کام، وہ مکمل ہونے کے بعد بھی انشاءاللہ 10 تک، پھر اس کے بعد میں آگے کرنے کا بھی ارادہ ہے، لیکن فی الحال 8 تک کی ہے. اچھا، آپ کے مدرسے میں جو ہے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم ہوتی ہے؟ جی، دونوں تعلیم ہوتی ہیں. اچھا. جو صرف دینی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سپریٹ ہے، اور جو دین اور دنیا دونوں ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دونوں کا انتظام ہے. اس کی فیس رہتی ہے کیا؟ ہاں، فیس رہتی ہے. جو مدرسے کی فیس رہتی ہے، جو صرف طلبہ مدرسہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایڈمیشن فیس 6000 ہے. پھر نیکسٹ ایئر سے 5-5 ہزار روپے سالانہ لیا جاتا مدرسے کے لیے. صرف مدرسے کے لیے. لیکن صرف مدرسے میں جو طلبہ پڑھتا ہے ایسا نہیں کہ دنیا سے ان کو دور رکھا جاتا، ان کو دنیاوی ایجوکیشن میں دیتے ہیں، جیسے کنڈا سکھاتے ہیں،
इंग्लिश सिखाते हैं, इल्म रियाजी सिखाते हैं। फिर उसके साथ ही हमारे हुबली के फजीलत सर वगैरह प्रोफेसर्स हैं, वो 15 दिन में एक मरतबा जामिया में आते हैं। आके 15 दिन तक जो भी हुआ था दुनिया में, या जो भी ज़रूरी मालूमात है कोर्ट के सिलसिले में, पुलिस स्टेशन के सिलसिले में, या जो भी कॉमन नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, हालत हाजिरा के मुतालिक वो तलबा की रहनुमाई भी करते रहते हैं। अच्छा, तो दोनों तरीके से बच्चों को मजबूत किया जा रहा है, ताकि दुनिया में आने के बाद में, मैदान में आने के बाद में यहाँ के हालात को देख के बच्चा सहम ना जाए, घबरा ना जाए, पहले से उसकी नज़र रहे दुनिया पर। इस हिसाब से दोनों तालीम। अच्छा, और एक सवाल मेरा ये है कि ख़ास करके जो है मदारिस में बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है, आप लोग पैसे क्यों ले रहे हैं? तो इसका मकसद यही है कि बच्चों के अंदर थोड़ा सा दर्द हो कि फ्री जो गरीब बच्चे हों कहाँ से देंगे? गरीब बच्चों के लिए उसका भी इंतज़ाम है। जो देने की इस्तिताअत रखते हैं उनसे हम पैसा लेते हैं, लेकिन जो देने की इस्तिताअत नहीं रखते तो हम थोड़ी तहकीक कर लेते हैं। फिर वहाँ से, वहाँ की जो जमात है वहाँ से लेटर पैड मंगवाते हैं, उसके बाद में फिर हम फ्री में उसको एडमिशन, मतलब ज़कात के ज़रिए से आप उसको फ्री में एडमिशन दे करके, हाँ, वो भी फिर हमारे अराकीन है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह माली एतबार से अल्लाह ने उनको बहुत ज़्यादा नवाजा। वो लोग अपनी तरफ से भी, जो बच्चे कमज़ोर हैं, अगर वो देना नहीं चाहते और उनके ख़ुद ख़र्चे के लिए भी नहीं है, तब भी जामिया उनका इंतज़ाम करता है उनके लिए। तो हम ख़ुद अपनी तरफ से देते हैं, या फिर आर्जी तौर पर किसी के पास नहीं है तो मदरसे में कर्ज़ का भी इंतज़ाम किया गया। तो कर्ज़ हसना के तौर पर बच्चे पैसे भी लेते हैं, फिर बाद में वापस जब उनके पास होते हैं तो जमा कर देते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम दरगुजर कर देते हैं। बहुत अच्छी बात। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मुजाहिद रज़ा नजमी है। मैं शहर भद्रावती से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आज शहर हुबली में आलम तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का 26वां सालाना सुन्नी इज्तिमा, जिसमें बिलखुसूस हमारे शहर भद्रावती के फ़ारिग़ीन बिहम्दिही ताला आज हम लोग एक नूरानी काफ़िला हमारे शहर भद्रावती से, हमारे शहर भद्रावती के एक बेहतरीन हाफिज़ व आलिम जिनके आज यहाँ पे दस्तारबंदी थी, जिनका नाम इसमें गिरामी मौलाना हाफिज़ व क़ारी उवैस नजमी साहब क़िबला है, जो आलम तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के दायरे में बेहतरीन फ़राग़त हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ में और कई साथियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आलम तहरीक है जिसने सिर्फ कर्नाटक या हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नौजवानों के सीनों में नबी की सच्ची मोहब्बत पैदा की अल्हम्दुलिल्लाह। यह हम सब पर हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी दाइए ताला आलम तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का बिलखुसूस हुजूर दाइए कबीर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद शाकिर अली नूरी रज़वी का ये बहुत बड़ा पूरी दुनिया के नौजवानों पर एहसान है कि हज़रत ने घर घर नबी की सच्ची मोहब्बत नौजवानों के सीनों में बसाई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर बहुत सारे पेंडाल्स लगाए हैं, शामियाने लगाए हैं, स्टेज से सजाए हैं, तो ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं इससे आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम लोग यहाँ से आलम तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की इस अजीम स्टेज से सिर्फ पूरी दुनिया को एक ही मैसेज देना चाहते हैं। जहाँ आज हर जगह पर एक फितना बरपा है, हर जगह पर एक दूसरे से आपस में टकराव तनाज़ु है, इस्लाम सबसे बेहतर मज़हब जो अमन सिखाता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज जो पूरी दुनिया में इस मज़हब इस्लाम फैला है, ये अमन की बुनियाद पर फैला है। ना कोई ज़बरदस्ती, ना कोई जबर, ना कोई जुल्म, ना कोई सितम, कुछ नहीं है। सब मुसलमान एक दूसरे में अपने से भी गैर से भी मोहब्बत से रहे, अमन से रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलेंगी कब? जब ऐसे अजीम इज्तिमा में तशरीफ़ लाएंगे, नबी की सुन्नतों को सीखेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, सहाबा की ज़िंदगी को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये चीज़ मिलेगी। और यहाँ से चलने के बाद हर कोई, आपने देखा 2 दिन का ये इज्तिमा रहा, कल ख़वातीन का रहा, आज मर्द हजरात करा। 2 दिन इतने सारे लाखों की, गलबन हज़ारों या लाखों की तादाद में, अनगिन तादाद में जो अवाम हाजिर हुई, एक ज़र्रा बराबर फितना व फसाद नहीं, एक ज़र्रा बराबर तफर्रक़ा नहीं। और यहाँ से जाने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही माहौल रहेगा। और ये सिर्फ शहर हुबली में नहीं, सबसे पहला इज्तिमा हमारा शहर बॉम्बे में हुआ, फिर उसके बाद बेंगलोर की सरजमी पर हुआ, आज अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा शरीफ की सरजमी पे, आज फिर वापस से हुबली की सरजमी पे। ऐसे ही पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमात को कायम करके हुजूर दाइए कबीर पूरी दुनिया वालों को अमन का पैगाम पहुँचाना चाहते। और अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के पैगाम सुन्नी दावत इस्लामी की स्टेज से सिर्फ और सिर्फ अमन का पैगाम होता है, और लोगों के दरमियान में आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक, नबी की सच्ची मोहब्बत और इस्लाह के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करें। यही सुन्नी दावत इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह हमें पैगाम मिला है, और इसी पर अल्हम्दुलिल्लाह हम बिहम्दिही ताला अमल करते हुए चल रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद उवैस अहमद है। अच्छा, आप जो यहाँ पर जो फूल डाले हुए हैं, ये किस लिए डाले हैं सर आपने? ये हमें खुशी से पहनाया गया है, क्योंकि आज के दिन हमने आलिम कोर्स का, जो आलिम है उसका कोर्स हमने मुकम्मल किया है। अच्छा, आलिम कोर्स क्या होता है? आलिम कोर्स ये 5 साल
फिर उसके बाद 7 साल ये कोर्स होता है जिसमें हम लोग बहुत सारे उलूम के ताल्लुक से हम जानते हैं। तो जब सीखते हैं, जब एक कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं तब हमको ये दस्तार दी जाती है, सर्टिफिकेट वगैरह दी जाती है। अच्छा, आपकी दस्तारबंदी किसने की है? हमारे दस्तारबंदी हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना शाकिर सब क़िबला नूरी। आप कौन से गाँव वाले हैं? मैं शहर भद्रावती, जिला शिमोगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। थोड़ा जोर से। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, खतीब, और हमारा इलाका हुबली टीपू नगर से है। अच्छा, जैसे कि अभी आप आलिम दीन बने हैं, तो ये किसकी मेहनत से आप आलिम दीन बने हैं? आपकी मेहनत है या आपके असातिज़ा की मेहनत है या फिर मदरसे की मेहनत है? किससे आप ये सहरा देना चाहते हैं? क्या आपकी माँ बाप की मेहनत है? किसे आप सहरा देना चाहते हैं? ये सबसे पहले अल्लाह की तौफीक है कि उसने हमें इस मकाम पर लाया, और हमारे असातिज़ा की मेहनत है, और हमारे पीर साहिब की मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी की मेहनत है कि उन्होंने हमें ऐसी तहरीक अता फरमाई और ऐसा मदरसा अता फरमाया जिसमें हम तालीमात हासिल कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका पूरा सहरा आप उन्हीं को देना चाह रहे हैं? बढ़िया। अच्छा, ठीक है। आप आलिम दीन बनने के बाद आप क्या करेंगे अभी? हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हमें दीन के लिए काम करना है। कोई भी मुसीबत आए या कुछ भी आए, हमारा मकसद सिर्फ ये जो इतने साल हम गुजारे हैं, 5 साल या 10 साल, ये मकसद सिर्फ हमारे एक ही है कि दीन की खिदमत करना है। बहुत मकसद है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಜಿಶಾನ್ ರಜಾ. अच्छा, ಇವತ್ತು ನೀವು ಆಲಿಮ್ ಆಗಿರನ? ಹಾಂ, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಆಲಿಮ್ ಕೋರ್ಸ್. ಯಾವ ಊರು ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಂಗ್ರಿಹಳ್ಳಿ ಅಂತ. अच्छा, ಇದು ಆಲಿಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರ್ತದೆ ಇದು? ಈ ಆಲಿಮ್ ಕೋರ್ಸ್ 5 ವರ್ಷದ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. अच्छा, ಹಾಂ. ಈಗ ಆಲಿಮ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಈಗ ಆಲಿಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಪೈಗಾಮನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನಿಗರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತೇವೆ ರೀ, ಮತ್ತು ದೀನಿನ ಖಿದ್ಮತ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೀ. अच्छा, ನೀವು ಈಗ ಆಲಿಮ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಏನು ಸರ್ ಆಲಿಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ? ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ. अच्छा, ಈಗ ಜನ ಏನಂತಾರ, ಭಾಳ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನಂತಾರ, ಇದು ಆಲಿಮ್ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ದು ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟರ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಓದಿಸಿದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಆಲಿಮ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ आलिम आगोदके। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपको एक हिंदी में सवाल ये पूछना चाहता हूँ। हमने सुना है कि आलिम बनने के बाद में 7 खानदान जन्नत में जाते हैं, कहाँ तक इसकी सच्चाई है हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। गालिबन बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक ख़ानदान में अगर कोई आलिम बनता है तो रब कदीर जल्ल जलालहू उसके 7 ख़ानदानों को जन्नत में दाखिल फरमा देता है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। हदीस पाक है, यही सच है। जन्नती हो गए। जन्नती। तो आप यही क्या पैगाम देना चाहते हैं पेरेंट्स को, माँ बाप को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं माँ बाप को, तमाम वालिदैन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल कराएं और फिर खूब मेहनत करें उन पर, कि बच्चे कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि जिसकी बुनियाद पर माँ बाप बच्चों को मदरसे से तर्क करा देते हैं, लेकिन कभी भी वालिदैन को बच्चों की ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने नहीं देना चाहिए, बल्कि ख़ुद इरादा करेंगे, बच्चों को अच्छा बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, तब जा कर के बच्चे हाफिज़ बनेंगे, आलिम बनेंगे, कौम के रहबर बनेंगे। और उसके साथ ही साथ मैं ये गुफ्तगू करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। ये एक दौर था जब मैं स्कूल पढ़ता था और गली का आवारा लड़का था, और उस वक्त जो है तो बहुत सारे बच्चे मुझे परेशान करते थे, मारते थे और फिर सताते थे, और गेम में भी ऐसे गेमों में मुझे लेते थे जिसमें परेशानियां करते थे, सताते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे मदरसे में दाखिल फरमाया, मदरसे में एडमिशन फरमाया, तो उस वक्त एक ही साल हुआ था मेरा मदरसा पढ़ करके। जब मैं गाँव को गया तो जो लोग मुझे मारते थे, परेशान करते थे, सताते थे, आज वही लोग मेरे सामने आते हैं तो झुक करके सलाम करके मेरे सामने से गुजरते हैं। तो ये इल्म दीन की अहमियत है। अपने बच्चों को खूब से खूब इल्म दीन हासिल कराने की कोशिश करो। अगर आप इल्म दीन हासिल कराएंगे तो एक बच्चा
तमाम दुनिया उसे सलाम करेगी। अच्छा, और एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप आलिम दिन मुकम्मल बन गए हैं। जी अच्छा, सवाल मेरा ये है कि जो आजकल जो मामला चल रहे हैं, जी। खास करके जो लड़कियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, बुर्खा निकाल देती हैं, या फिर लड़के जो है एक गलत कामों में मुलव्विस है, जी। तो ये किसकी कोताही है? माँ बाप की कोताही है या इल्म दीन ना सीखने की कोताही है? क्या है? इसकी बेशुमार वजूहत हैं, एक वजह नहीं है बल्कि बेशुमार वजूहत हैं, और उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वालिदैन की बेतवज्जही है। क्योंकि बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो पेरेंट्स ये ख्याल नहीं करते कि मेरा बच्चा किसके साथ मिल रहा है, किसके साथ रह रहा है, किसके साथ नहीं रह रहा है। अगर पेरेंट्स इस चीज़ पर तवज्जो दें कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कहाँ रह रहा है, ये तमाम चीज़ों को ख्याल रखते हुए वो अपने बच्चों की रहबरी करेंगे और अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, और जहाँ उस अपने बच्चे की गलती दिखती नज़र आती है वहीं पर अगर उसकी इस्लाह करके, उसको डांट करके उसको की इस्लाह करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे बेहुरमतियाँ कभी नहीं होगी, गलत रास्ते में नहीं पड़ेगा या नहीं पड़ेगी, ऐसा बोल रहे हैं आप। जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम अच्छा, कौन से गांव वाले हैं? अच्छा, आलिम दीन आप बने हैं, किस लिए आलिम दीन बने हैं? हमारे उसका मकसद क्या आलिम बनने का? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम दीन बना हूँ। मेरा मकसद ये है कि मैं आगे चलकर दीन की खिदमत करूँ और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ, और इसके बाद जो है मैं आगे चलकर अवाम जो मुस्लिम अवाम है उन तक मैं अपना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उन तक पहुँचाऊँ, और जो बुरे काम है कैसे पैगाम को कैसे पहुंचाएंगे? दर्स के जरिए से और कभी अखलाक के जरिए से। बाहर आता नहीं तो हमीद बाहर आता, उसे बोल मैं तो मेरा कहना फोन ये नहीं चाहता हूँ कि अपने अखलाक को संवारे। एक आलिम वो होता है अपने इल्म पर अमल करे, फिर उसके बाद लोगों को बताए, तब इस बात का अमल उन पर असर होगा, इस बात पर अमल करने के बाद उन पर वो असर होगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ करूँ कि अल्लाह ताला हर आलिम को अमल करने के बाद लोगों को बताने की तौफीक अता फरमाए।